you are 10th standard, you don't have a clarity की and what exactly are you looking for. हाँ ठीक है, somebody told कि engineering है, life set हो जाएगी. जो आप सोचते थे अपने फ्रेंड के कि उसका ज्यादा है, मेरा मतलब मेरे को भी मेहनत करनी है, तो उसको कैसे डील करते थे? बुरा लगता है एंड उस वजह से क्या होता दिल है, से बुरा लगता है भाई. So guys, my friends are from IIT. Yeah, dude, introduce yourself. Hey, hi. I'm Dharmendra. Dharmendra from IIT Bombay or IIT Bombay. He's from IIT Bombay. Dharmendra, dude, your name? Hi, Ashish Jha. Ashish Shah, IIT Rai. Madras. IIT Madras. So guys, these IITians. तो yes, अभी इन लोगों ने हमें देखा converse करते हुए. Shashank bro is also there. Ujjwal is there. So we're discussing कि yes, आप भी अपने आप को introduce कर दो जल्दी से. I am Aradhana Yes. and I'm not an IITian. But and still. तो we were all discussing guys कि हमारे class 10th का experience and हमारे IIT Bombay and Madras वाले friends they were like you know they said कि हमारी conversation सुन के शशांक और मेरी conversation they were thinking about their times and they have been friends for 10 years और उन्हें आज तक ऐसी बातें नहीं करी but they started discussing in that aspect. So they were sharing. Yeah. So how did you feel? So one thing that's very resonating is when you are 10th standard, you don't have a clarity की and what exactly are you looking for. हाँ ठीक है, somebody told कि engineering है, life set हो जाएगी. That's the story or you want to follow, right? So Yeah. The good thing is कि as long as you're chasing something that will possibly give you a sense of direction, that's always excellent at that age because more often than not, half the time you're just focusing कि चाहिए क्या life में. Like if you have that clarity, then that certainly helps. And I think so throughout our journey, we have never been in a position जहाँ पे हमें लगा था कि नहीं IIT तो हो ही जाएगा. Because every time we have had then in that doubts कि यार ये तो अपने बस की चीज नहीं है. यार ऐसा सबको लगता है कि नहीं होगा मेरे से, किसी को लगता ही नहीं है कि होगा मेरे से. बट जो एंड तक लगे रहते हैं ना, who keep persisting till the end, they succeed. Do you guys agree? I'll not lie, but when I started the JEE preparation in 11th, तो 11th में when I was doing the study, after 3-4 months, what I realized कि IIT तो नहीं होने वाला है. So क्लासेस फिर भी कंटिन्यू रखेंगे, बट AIEEE देंगे. लेट से IIT के बाद AIEEE सुना हुआ है कि AIEEE अच्छा होता है, तो AIEEE देंगे. और लेकिन फिर भी ये था कि नहीं, क्लास नहीं छोड़ेंगे, क्लास तो करते रहेंगे, कुछ तो सीखने को मिलेगा. और अगर सिंस IIT की क्लास में पढ़ रहा हूँ तो AIEEE से तो बेटर ही हो जाएगा. तो कुछ नहीं मिलेगा. IIT वाले के यहाँ से सीख रहा हूँ तो AIEEE में तो अच्छा है, और AIEEE में अच्छा है तो भी लाइफ सेट होगी. तो ये इसी सोच से मतलब कि कंटिन्यूअस पढ़ता. अच्छा ब्रो, एक बात बताओ, लाइफ सेट होगी क्या? IIT होगी तो लाइफ सेट वाला कॉन्सेप्ट हो गया क्या? तो फर्स्ट ऑफ ऑल IIT वर्ड इज काफी ओवररेटेड. तो इंट्रोडक्शन में IIT वाला वर्ड हटा के ना कुछ और करना चाहिए. ओके, वो थोड़ा सा काफी ओवररेटेड है सोसाइटी में, और उसकी वजह से ना थोड़ा सा लोग डिप्रेस भी हो जाते हैं. वी कैन टॉक अबाउट दैट लेटर, बट एक्चुअली दैट्स अ रियलिटी. सो वी शुड चेंज दैट कि हे आई एम धर्मेंद्र and I am doing so and so work. I feel like connecting with people and I feel like doing some social causes related work. That's how you should introduce yourself. And there is no IIT Because that's literally not required. Yeah. We are on the same page right now. It's not like you're not IIT and then we are not in the same. ऐसा कुछ तूफान ही नहीं होता IIT क्लियर करके. तो literally कुछ नहीं है. Best part is कि like we often used to think कि नहीं कर लेंगे तो यार एक कुछ मिल जाएगा. मिल जाएगा तो मिलता है कुछ. नहीं मिलता. मिलता है पूरा. I think so. One thing that at least we both have understood is during that journey was कि हम लोग को कोई सिखाता नहीं था कि मतलब पढ़ना कैसे, मतलब like हाँ Yes. how to learn, that is missing. सीखना कैसे, क्या what to learn, like what to learn तो बता देगा ये पढ़. अरे कैसे यार ये पता है, ये चीज बहुत ही मिसिंग है सोसाइटी में कि पढ़ना कैसे चाहिए, उसको अप्लाई करना कैसे. उनको बस मार्क्स के लिए रट्टा मारो नंबर लो, रट्टा मारो नंबर लो. मतलब वहाँ पे गोल मतलब सिंपल है कि एंड से में परसेंटेज तुम्हारे कितने आ रहे हैं, तुम्हारा एंड में CGPA कितना आ रहा है. दैट्स व्हाट खत्म. पूरा मतलब पूरा 3 साल एजुकेशन सिस्टम वहाँ पे दिखता है. उसके अलावा कभी किसी ने बीच में नहीं पूछा कि यार लर्निंग कैसे हुई, क्या सीखा, कुछ क्या इंटरेक्शन किए. मजा क्या है? अबे मजा कुछ नहीं है. मजा ये है मेरे कॉम्पिटिटर से 2 नंबर ज्यादा आ गए तो मेरे जिंदगी सफल हो गई. वाह यार, I'll tell you, होता है ना, हम लोग ना बहुत ही वो सबलिमिनल वाली बात करते हैं. तो हमारा ना कॉम्पिटिटिव सोसाइटी है, वी लुक इट फ्रॉम अ वेरी नैरो पर्सपेक्टिव. असली कॉम्पिटिशन चल मैं तेरे से जीत गया, यू आर माय कॉम्पिटिटर, मैं तेरे से जीत गया, बट
दुनिया इतनी बड़ी है, इतने सारे कॉम्पिटिटर्स है, तो किस किस से जीतेगा भाई? आज तेरा कॉम्पिटिटर ये है, पहले तो ये पता नहीं चलता कि सही रेस में भी है कि नहीं। एग्जैक्टली कौन सी, हाँ तू मछली है, ये बंदर है, मैं कुछ भी है, हम लोग सब सेम रेस में भाग रहे हैं। I'll tell you, मतलब सिंपल है एक ही चीज की, अगर कंपटीशन करना भी है ना तो सिर्फ खुद से Exactly. मतलब सिर्फ खुद से करो, एंड दैट्स व्हाट आई हैव बीन डूइंग नाउ। कि अगर मुझे कुछ भी कंपेयर करना है, मुझे अगर देखना है कि इफ आई बिकम बेटर नाउ, आई विल कंपेयर विद माय सेल्फ ओनली, कि हाँ अच्छा मैं पहले अभी इस तरीके से सोचता था, ये थॉट प्रोसेस था, या फिर इस तरीके से अचीव करता था चीजों को, अभी मैं इस तरीके से कर रहा हूँ। So that is what और ब्रो जेलेसी भी आती है, मतलब मेरे साथ का है ये, इसके ज्यादा कैसे आ गए, इसको ज्यादा पैकेज मिल गया है ना, हमारी वीडियो में इसको ज्यादा व्यूज आ गए। यार ठीक है, आ गए तो अच्छी बात है, वो अच्छा आदमी है, अपने अच्छे एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहा है, तो इट इज हाँ, डोंट बी लाइक कि अरे उसको कैसे मिल रहा है, उससे सीखो, उसने कितना हार्डवर्क पुट करा है, इसलिए उसको पैसे मिल रहे हैं, या फिर वो कोई चीज अच्छी दे रहा है सोसाइटी के लिए। मतलब ये जो ना मैं ही अच्छा हूँ, बाकी भी बहुत सारे अच्छे लोग हैं, एंड दे आर ऑल्सो गिविंग द गुड थिंग टू द सोसाइटी। तो yeah. But on that competition front as well, I think so. Like to some extent, competition एक बहुत propelling force भी बन जाता है, because not competition per se, but like I'll put it in a way कि peer learning. हाँ. जब आप आपस में सीखते हो कि हम like there's another peg to the कड़ी that we are. So there is another third person as well. Third person वो भी IIT से? नहीं वो अपना अलग उसका चलेगा. But the thing is, the three of us, the amount of learning that we had from each other, because हम तीनों सेम चीज पढ़ रहे थे, और हमें पता था कि भाई इसको ये नहीं समझा आएगा, उसके लिए उसको नहीं पता चल रहा है, तो तू ऐसे देख। तो that perspective and that peer learning is very amazing thing that यार वही तो होता है ना, हमें लगता है कि उसको आता होगा, बट जो तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग है वो अलग है मेरी, और मतलब एकदम बेसिक लेवल से बताना चाहिए सबको, और मतलब ये नहीं होता चाहिए कि हो रहा है, सोचने का तरीका, द थिंकिंग प्रोसेस, थिंकिंग नहीं, मतलब तुम आंसर पे पहुंच गए, बट क्या सोच के पहुंचे वो बताना जरूरी है, थॉट प्रोसेस बताना जरूरी है चीजों का। इनफैक्ट अगर कंपटीशन देखना भी ना, तो आई एम सेइंग वी आर ह्यूमंस, विल इफ आई एम अटैच्ड टू हिम, इफ ही इज गेटिंग मोर मार्क्स, थॉट विल कम दैट हे उसका ज्यादा है, हाँ, दैट इज वैलिड थॉट, दैट यू आर ह्यूमन, इट विल, दिस इज नॉर्मल, दिस विल कम, बट नाउ instead of using that thought in a bad way, what you can do is, so that's how we have collaborated, right? That's what he वही peer learning. So of course हमारे मार्क्स अलग, कभी किसी की टेस्ट में किसके ज्यादा है, मेरे ज्यादा है, मतलब होता रहता है वो, that happened. बट ओवरऑल तुम दोनों सबसे आगे निकल गए। ऐसा नहीं है कि मेरे को भी फीलिंग नहीं आई कि अरे भाई इसके ज्यादा आए, भाई पैकेज लग गया या फिर सेट है या जो भी है, मतलब ऐसे फीलिंग्स बीच बीच में आती रहती है, इवन बंदी पड़ गई वो वाला भी फीलिंग है। वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऐसे वो वाली फीलिंग्स बीच बीच में आती है, दिस इज ट्रू बाय द वे। लेकिन that doesn't mean कि that hey I'll discourage myself कि भाई मतलब अब तो मैं यार मेरा तो कटेगा लाइफ से, ऐसा नहीं है। Exactly. और एक और चीज है, तुम दोनों साथ मिलके बाकियों से बहुत ज्यादा आगे आ गए हो। टुगेदर यू हैव कम अ मोर वे। मैं अपने बच्चों को कहता हूँ कि ना शक्तियां मिला लो अपनी। वो यार कैप्टन प्लेनेट वाली देख, वो चीज रहती है कि like we are trained to think कि it's a zero sum game. Exactly. It is not. It is a yeah. More power you put in, the more output. वो ना कैप्टन प्लेनेट आता अपने टाइम पे, याद है? मैं जल हवा ये सब मिलता है कैप्टन प्लेनेट। उसी तरह मैं कहता हूँ कि तुम ना अपनी शक्तियां मिला लो। तुम्हारी लड़ाई आपस में नहीं है, तुम अपने स्कूल के 5 लोग शक्तियां मिला लो, तुम पूरे दूसरे डिस्ट्रिक्ट के बच्चे से compete करो। तुम अपनी क्लास के 5 बच्चों से क्यों compete कर रहे हो? वो तो तुम्हारी पावर सोर्स है। तुम लोग अपनी पावर्स मिला लो तो तुम लोग पूरे स्टेट के उनसे ज्यादा अच्छा ला सकते हो। इंस्टेड ऑफ अकेले लड़ाई करने जाओगे तो खूब पिट पुट आके आओगे। तो दिस इज अ रियली गुड वे ऑफ पुटिंग इट। तो मतलब ये एनालॉजी देता हूं, तो मैं कहता शक्तियां मिला लो। कहते हाँ सर। आदमी लोग कोलैब करते हैं ना ऐसे, मतलब यू नो एक दूसरे को सिखाते हैं, तो क्या सीन बन जाता है, वो जो टीम वाला सीन है ना वो बन जाता है। तो लेटर इन लाइफ for leadership position also, to work in a team you need those skills anyways. यार आई से कम्युनिकेशन इज द बेस्ट स्किल। कम्युनिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है तुम्हारा, जो तुम्हें चाहिए। बाकी चीजें तो तुम सीख सकते हो। कम्युनिकेशन, कॉन्फिडेंस और लर्निंग एटीट्यूड। लोगों को लगता है लोगों को यस लर्निंग एटीट्यूड लोगों को लगता है कि खत्म है, या फिर मतलब 12वीं कर लिया, फिर बीटेक नहीं बीटेक कर लिया, सुपरमैन बन गए, पैसा आएगा, पैसा ही पैसा। तो अब लर्निंग बंद हो गई। मतलब आई थिंक दैट्स लर्निंग बंद। एक लाइफ का एक स्टेप कंप्लीट होता है, एंड देयर इज लॉट ऑफ स्टेप्स थ्रू देयर एंड इट विल कंटिन्यू टिल यू डाई। सिंपल। मतलब इट इज नॉट लाइक कि मतलब कभी हो जाएगा कि फ्लैट आ गया, लर्निंग खत्म नहीं, फ्लैट आ गया तो लर्निंग में तेरी, तो अर्निंग में भी तेरा फ्लैट आ गया, अर्निंग तो नहीं बढ़ा पाओगे अपनी। हाँ मतलब, और लर्निंग को थोड़ा सा डिस्टेंस करके रखो, बट हाँ मतलब लर्निंग विल नेवर स्टॉप, नेवर एवर। एग्जैक्टली। अर्निंग ऊपर नीचे जो भी हो रहा है, एंड लर्निंग देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लर्निंग। आई टेल इमोशनल लर्निंग इज देयर। You learn how relations been established, how the relation gets broken, how bad you go through when the relation is broken. Yes. So all these, this is learning. अब
तुम या तो तुम छोटी चीजों को लेकर सफर करोगे, जैसे कि घर में चीनी नहीं है, पास वाली आंटी लड़ रही है, either you are solving a bigger problem and worrying about that. तो तुम ये चिंती चीजों के बारे में सोचोगे नहीं, तुम्हारे कपड़े प्रेस नहीं है, तुम्हारा धोबी नहीं आया, तुम्हारा कुक नहीं आया, तुम ये सब चीजों का नहीं सोचोगे, तुम बड़ी चीजों का नहीं सोचोगे यार ये इम्पैक्ट करना है। तो इट इज जस्ट कि पिटी चीजों के बारे में सोच के यू गोना फील बैड और यू गोना थिंक अबाउट अ बिगर पिक्चर एंड वर्क टू हार्ड टू सफरिंग इज देयर इन बोथ, वो कहते हैं ना, तो वो वाली बात है। मतलब पेन तो जाती है तो पता चलता है कि ये लड़ाई लड़नी है, कौन सी लड़ाई लड़नी है ब्रो, सही। तो मतलब हर जगह आने वाला है, चाहे जो भी है, मतलब कोई बड़ा आदमी भी होगा, एटलीस्ट सबसे बड़ा बिलियनियर भी होगा ना, उसके बाद ही पता रहेगा कि कहाँ पे लड़ाई करनी है। एनर्जी फोकस रहता है, एनर्जी फोकस रहता है लाइफ का यार बहुत ज्यादा। जैसे कि अब आई स्टे विद माय पेरेंट्स, तो मेरा एनर्जी फोकस, मैं दिन भर काम करता हूँ, मेरे को खाना सॉर्टेड है, मेरा कपड़े वपड़े सॉर्टेड है। पीपल आर लाइक कि यू आर स्टेइंग विद योर पेरेंट्स, तेरी फ्रीडम वगैरह क्या है? मैंने कहा फ्रीडम क्या है? दिस इज द बिगेस्ट फ्रीडम आई कैन गेट, आई हैव ऑल द टाइम इन माय वर्ल्ड। मतलब मैं बाहर रहता था पहले, मतलब पास में ही बाहर रहता था, बिकॉज आई थॉट कि मतलब वहाँ से ऑफिस पास में है एंड आई हैव मोर फ्रीडम एंड मोर फ्री टाइम, पेरेंट्स से दूर, मतलब दूसरा घर लेके और दोस्त के साथ। लेकिन आफ्टर 2 years आई शिफ्टेड टू होम, मेरा ट्रेवलिंग टाइम 1.5 घंटा है वन वे, बट देन ऑल्सो आई शिफ्टेड बिकॉज ऑफ दीज कन्वीनियंसेस, एंड देन व्हाट हैपेंड इज दिस गेव मी अ रूटीन ऑल्सो, एंड रूटीन इज वेरी इंपॉर्टेंट। परफेक्ट, मतलब रूटीन अगर आ गया ना आपके लाइफ में, तो फिर उसके बाद सिंपल है। हाँ, मतलब सिंपल है कि आपको क्या करना है, वो रूटीन में ना बस एक नया चीज डाल देना है। आपको गिटार सीखना है, बस रूटीन चाहिए। मतलब गिटार सीखने के लिए मतलब कोई अच्छा टीचर है, अच्छा स्टूडेंट है, कुछ नहीं, अगर रूटीन है सिंपल तो वो चीज हो जाएगी। एग्जैक्टली, परफेक्ट। आराधना जी आप क्या कहना चाहते हो? आपने कुछ इनपुट्स नहीं दिए, आपके ऊपर अब बात आई है। आप बताओ कि फीमेल पर्सपेक्टिव, जब एग्जाम दे रहे थे क्लास 10th में, तो व्हाट वर यू थिंकिंग? कुछ नहीं, मेरे पेरेंट्स बहुत लिबरल है, लाइक दे नेवर डू डिफरेंस बिटवीन लड़का या लड़की ऐसा टाइप का। एंड पता नहीं, बट ये है कि पढ़ लो, अच्छे से पढ़ो, गिव योर बेस्ट, रिजल्ट्स जो भी आए वो देखी जाएगी। और स्ट्रेस हुआ था एग्जाम से पहले? वो होता है ऑब्वियसली, कि ये होता है क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली में यही रहते हैं कि पेरेंट्स इन्वेस्ट कर रहे हैं इतना, हम खड़े हो पाएंगे कि नहीं, एक वो प्रेशर रहता है। फिर उसके बाद एक कंपैरिजन बच्चों के दिमाग में पेरेंट्स बचपन से ही डाल देते हैं। हाँ। ऐसे बहुत मेरे घर में प्रेशर अप नहीं होता था, बट ये भी है कि दे यूज्ड टू एक्सपेक्ट अ लॉट फ्रॉम मी। तो वही चीज है। बट वन चीज मैं बोलती हूँ, लड़का या लड़की सबको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। परफेक्ट। क्योंकि स्पेशली मैं गर्ल्स के लिए भी बोलूंगी, क्योंकि कभी कभार क्या होता है, कुछ चीजें अगर तुम्हारे भाई नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि भाई को भी कल को फैमिली सेट करना है, तो तुम एज अ डॉटर वो फुलफिल कर सकती हो, इट्स नॉट नेसेसरी। तो वही चीज है। एंड अपने ड्रीम्स तो खुद तुम पूरे कर ही सकते हो, इंडिपेंडेंट रहोगे तो बहुत चीजों में इन्वेस्ट कर सकोगे, सबसे हेल्प ले। तो जो डर लगता था कि स्ट्रेस आ रहा है कि मैं क्या सक्सेसफुल होऊंगा या नहीं होंगी, तो उसको कैसे हैंडल करते थे? सक्सेसफुल होंगी नहीं होंगी वो कभी नहीं सोचा मैंने ऐसे। हाँ। कि मेरा यही है कि अभी जो मेरा करंट टास्क है, मैं उसी को प्रॉपरली डेडिकेटेडली मैं कंप्लीट करूँ। आई हैव ऑलवेज बीन अ वेरी एवरेज, समटाइम्स बिलो एवरेज। तो मेरे को इतना नहीं है, ठीक है, बट मेरे को ये है कि डेडिकेटेडली है। मैंने इंजीनियरिंग किया है, तो मेरे को ये है कि इंजीनियरिंग में घुसी हूँ, बैकलॉग्स आए थे, आई टेल, बट ये भी है कि वो गिव अप नहीं करना है कि वो नहीं हो रहा है, पल्ले नहीं पड़ रहा है, गिव योर 100%। तो आपको डर नहीं लगता था फ्यूचर से? नहीं, वो प्लेसमेंट के टाइम लगता था कि अच्छा पैकेज हो जाए, ऑब्वियसली सबको डर लगता है। तो जैसे होता है ना कि पीयर प्रेशर रहता है कि उसको अच्छा मिल गया, हाँ। वही होता है कि मेरी फ्रेंड का इतना हो गया, वो मुझे इतना कम मिल रहा है, मतलब मुझे उसके लेवल का आने के लिए मुझे और कितनी मेहनत मतलब हम कुछ नेक्स्ट लेवल ही सोच लेते हैं। तो द थिंग इज स्टार्ट करो, सब हो जाएगा। और कंपटीशन के बारे में क्या है जो आप सोचते थे अपने फ्रेंड के कि उसका ज्यादा है, मेरा मतलब मेरे को भी मेहनत करनी है, तो उसको कैसे डील करते थे? बुरा लगता है, एंड उस बुरा लगता वजह है से भाई, आप लोग क्या दिल होता से है, बुरा लगता है भाई। obviously दिल से बुरा लगता है ब्रो। चलेगा। हाँ इससे थोड़ा सा एक नंबर। एकदम वही चीज है, बट वो वही चीज है ना, जो तुम्हें मिलता है ना, हैप्पीली एक्सेप्ट दैट, मेक पीस विथ इट। क्योंकि अगर तुम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाए ना, रियलिटी में तुम भी नहीं सस्टेन कर पाओगे, ना खुश रह पाओगे। एंड यू नेवर नो लाइफ में कब क्या चीज क्या हिट कर जाए, क्या I know. स्टेपिंग स्टोन बन जाए,
है कि नहीं? वही जैसे कि जो तुम्हारा 20 में क्लिक करा, धर्मेंद्र टोल्ड दैट ऑलवेज बी कंपटीशन रखो, दूसरों के साथ कंपटीशन रखो तो वो चीज तुम्हें बेटर कर सकती है, बट उसके लिए ये नहीं कि जल भून के तुम कुछ हाँ दूसरों की वो पढ़ाई देख के Like, जल इसको कैसे आ गया? इससे अच्छा उससे सीख लो, आई वुड से उनसे सीख लो। होता है ऐसे कि बड़े एमएनसीज में तुम्हें नॉर्मल सी कोई कंपनी में मिल गई है, तुम्हारी कोई बहुत ही ऐसी कोई मतलब ढंग से इंग्लिश भी ना बोल पाए, जो स्मार्ट ने स्टेज फ्राइट है किसी को, उसको मतलब एमएनसी ने ले गए, इसमें क्या है जो मुझे that's what a conception is, होगा देखा होगा उस टाइम पे। तो वही चीज है, वी हैव टू एक्सेप्ट, मेक पीस विद इट एंड कम्पीट विद योरसेल्फ नॉट अदर्स। कम्पीट विद योरसेल्फ। मतलब I'll tell you one line जो मेरे पापा ने मुझे बताया था कि मतलब आदमी अपने दुखों से कम दूसरों के सुखों से ज्यादा परेशान होता है। आई नो, समझ रहे हो? मतलब मेरा कट रहा है, उसका मुझे कम पेन है, दूसरा ऊपर जा रहा है, उसका ज्यादा पेन है। दैट्स द ह्यूमन नेचर एंड दैट इज व्हाट यू हैव टू क्रॉस। कीपिंग दैट इन चेक इज वेरी गुड। मतलब हाँ, मतलब कि वो अगर उसके ऊपर जब भी उठ गया ना, आराम से मतलब सक्सेस क्योंकि इमोशंस से फीलिंग यार, वो तो आई, उसको कुछ नहीं कर आएगा, इमोशंस आएगा, आगे लेकिन बढ़ो, वो उसको अगर जिस दिन उसके ऊपर आ गया ना, उसके बाद तो प्रायोरिटी में एकदम नीचे ले जाओ, you know, Yes. so that हाँ, you वो can- लड़ाई लड़नी नहीं है, वो हाँ, ये तो मरे। okay guys, finally one question to all of you, ठीक है? सब अपनी क्लास 10 मार्कशीट बताएंगे। शशांक योर क्लास 10 मार्कशीट 80% something। बता दिया उन्होंने, उज्जवल का भी बताएंगे अभी आएंगे। यस ब्रो, योर मार्कशीट 84 कुछ था। 84% in class 10 bro, 95%। 95% वाला बच्चा। भाई से बचा वाला। यस डूड, आप बताओ। 66 ये हमारा 66 वाला बच्चा। चीयर्स, वेरी गुड। उज्जवल ब्रो, वी नो ऑल योर 72, 66 एंड या माइन यू नो गाइस 86.8 पूरा पॉइंट के साथ बताएंगे हम। See, still we are sitting at the same place. Still at the sitting at the- Doesn't matter. I'm 95. Doesn't matter. C 66. It takes We you are the the same same place, same thought process, same vibe. That's what we are connecting here. Amazing. That's And one more final question to all of you, ठीक है? Do dreams come true? I'll ask each one individually कि what you had expected when you were in class 10th. तो वो जो आपको ड्रीम लगता था, तो क्या आपको लगता है कि यू हैव अचीव्ड इट और यू आर ऑन द वे ऑफ इट? और चाहे रास्ता दूसरा हो, अब डेस्टिनेशन में थोड़ा बहुत पहुंच चुके हो, जैसे कि यू वुड हैव ड्रीम की IIT करना ही है, तो इट यू हैव अचीव्ड दैट ड्रीम, है ना? I'll talk to you. We'll come to it. Ujjwal, so yes, what about your dream? Do dreams come true? Absolutely, dreams do come true. Like for me, maybe not in 10th I dreamed of anything, but after I came to college, like I told already, Exactly, we I have saw that. the stage once, and I was like, before I leave the college, I should perform there, and it really happened Arey, you should have wished, make me president of India. You that time it would have. because I worked for it also. Exactly, so I you worked for it, and it happened. So that's what, like you were saying, like we should not look at others' success as something hurting. So what happens is, if we know what we want, if we just work on that and just focus on that, even those thoughts won't come to us. So that's the way to go. perfect. Yeah. Shashank bro, do dreams come true? I think it does come true, but you have to work for it. ऐसे नहीं कि मतलब बस सोच लिया तो मिल जाएगा। तो मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। मेहनत करनी पड़ती है। जैसे उधर कोट किया था APJ अब्दुल कलाम को ना, dreams are true that doesn't let you sleep. Exactly. नींद नहीं आती ब्रो कहीं। Exactly. That is, बच्चों नींद नहीं आती तो अच्छी बात है। Like line that I have touched by a lot. और ये लाइन एक्चुअली इसलिए बहुत स्पेशल है मेरे लिए, क्योंकि ये ना मतलब जहाँ पे अंधेरी में जहाँ पे मैंने पढ़ाई की थी और जहाँ से मैं इसके लिए ऑफिस के लिए जाता हूँ, वहाँ पे इफ यू गो अंधेरी में मुंबई में, वहाँ पे ये लाइन लिखी हुई है। अच्छा। कि मतलब यही सेम लाइन लिखी हुई है कि सपने वैसे होने वो देखो जो तुम्हें सोने ना दे। अरे मैं तुम्हें एक बताऊँ, इससे मेरे को याद आ गया। और वो मतलब लगभग मैंने डेली उस बात को क्रॉस किया और मैंने डेली देखा है, एंड दैट हैज इंस्पायर्ड अ लॉट। Dude, I'll add over here, ठीक है? जैसे कि ना मैं UPSC की तैयारी कर रहा था, तो ना मैंने भी यही लाइन पढ़ी जो तुमने पढ़ी है ना? मेरे को ना रात को ना मैं एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ता था,
तो खालजी वलजी है ना, रणवीर कपूर की मूवी आई थी, तो मैं जब सोता था ना मेरे को सपनों में वही आते थे कि लड़ाइयाँ चल रही है दिल्ली सुल्तानेट की, मेरी आंखों मतलब, तो आई यूज्ड टू टेल माई सेल्फ, ये तो लाइक आई एम नॉट एबल टू स्लीप, आई यूज्ड टू टेल माई सेल्फ, या सपने वो होते जो सोने वाले, बढ़िया सपना देखा अमृत, बहुत बढ़िया सपना देखा, वाह नींद नहीं आ रही है, खलजी लड़ाइयाँ हो रही है वहां पे, मैं उठ के फिर 4 बजे पढ़ने बैठ जाता। मैं तो 2 साल अंडरग्राउंड किसी से बात ही नहीं करी, मैं मेरे दोस्तों को तो ये भी नहीं पता कि 6 महीने मैं बैंगलोर में आ चुका था, 6 महीने तक मैंने बताया भी नहीं किसी को कि मैं आ गया हूँ। तो एनीवेज कमिंग बैक टू मैडम आप बताओ, डू ड्रीम्स कम ट्रू? या ड्रीम डू कम ट्रू। मेरा सिंपल था, मेरे को एक अच्छी लाइफ चाहिए जहाँ पे मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हूँ, मैं इतना कमा सकूँ कि मैं अपनी खुशियाँ, आई कैन अफोर्ड माई हैप्पीनेस। सो मेरे लिए इतना कोई बड़ा हाई एंड हैप्पीनेस नहीं, आई एम अ वेरी सिंपल पर्सन, तो ठीक है, हाई एंड भी करते हैं, तो देखो हाई एंड ड्रीम भी होते हैं, लो एंड ड्रीम्स भी, सारे ड्रीम्स पूरे होते हैं। बट वही है कि फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंटली सक्सेस जितना भी क्यों ना मिले, बी अ गुड पर्सन। But what you were imagining as a kid, you have attained it, right? Somewhat. Yeah, I have attained it. बस. ठीक है. Very good. And like मैं बहुत बुरी भी बन सकती थी, इतना एकदम बकवास कि घर वाले मतलब कुछ नहीं, शादी करवा दो, ऐसा भी सीन हो सकता था। बट नहीं, my parents they had confident, they have given me boosting कि नहीं करो, अच्छी बात है, इंडिपेंडेंट जब होगी उसकी खुशी अलग ही मिलती है, तो that's what. Nice. The dreams do come true from here also. देवेंद्र बताओ, dreams do come true. 101%. Perfect. Yes. तो you were dream, IIT वाला dream का बारे में बताओ. I'll tell you the most important point about the dreams. Why do you first of all dream? When you dream, that gives yourself a belief and a confidence. And using that belief and that confidence, what you can do is use that to put something to work on that dream, basically. तो अगर सपने नहीं देखोगे तो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तो काम नहीं करोगे, इसलिए सपने देखना बहुत जरूरी। अब मैं बताता हूँ कि सपने जरूरी नहीं है कि जो सपने देख रहे हो वही पूरे होने वाले हैं, लेकिन जब सपने देखना चालू करोगे ना, दैट विल इवॉल्व। तो वो ऐसा, हाँ प्लीज गो अहेड। फॉर मी आई डिडंट न्यू अबाउट IIT टिल 10th, ओके, मतलब डिडंट न्यू अबाउट IIT कि ये पूरा इकोसिस्टम क्या एग्जिस्ट करता है, कुछ नहीं मालूम था। एंड देन आफ्टर दैट मेरे पापा ने IIT उनके सर्कल नेटवर्क से पता करके बोला कि IIT करना चाहिए। आई वाज आल्सो गुड इन स्टडीज, तो बोले चलो ठीक है IIT करते हैं। और दैट्स व्हेन इट स्टार्टेड इन माय हेड कि हो वाओ कुछ तो है, IIT करना चाहिए। एंड मतलब मेरा थॉट प्रोसेस ऐसा था कि मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक होता हूँ चीज़ों को लेके, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे ऐसा लगता है कि वेरी इंपॉर्टेंट होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब इवन इफ द सिचुएशन इज लाइक कंप्लीटली अपोजिट, सी देखो कि इसमें सही क्या है, उसमें एक चीज तो सही हुई होगी। मतलब बी ऑप्टिमिस्टिक, इवन दैट इज वेरी स्मॉल, बी ऑप्टिमिस्टिक बिकॉज दैट्स व्हाट विल लेट यू ग्रो। और वही मतलब बेसिकली दैट इज अ सोर्स फॉर मी एज अ कॉन्फिडेंस, बिलीव एंड बहुत सारी चीजें। एंड तो बेसिकली ड्रीम्स मेरे इवॉल्व हुए हैं। मैं जैसे टिल 10 तक तो मुझे ऐसे था कि शायद तब मुझे BSc BCom और BA पता था, ठीक है, लिटरली IIT तो मालूम नहीं था। तो मैंने सोचा BSc बहुत ऊपर होता है, BCom शायद बीच में है, BA नीचे है, तो BCom करेंगे। हाँ, मतलब ये ऐसे टाइप से सोच लिया। एंड देन उसके बाद आफ्टर 10th इट इवॉल्व्ड अगेन, नाउ IIT केम इनटू द पिक्चर। उसके बाद नाउ आई एम वर्किंग समथिंग एल्स कमिंग इनटू द पिक्चर। नाउ एंटरप्रेन्योरशिप इज कमिंग इनटू द पिक्चर। नाउ आई एम थिंकिंग कि सोसाइटी को कैसे देना है। इट इज इवॉल्विंग ओवर टाइम। मतलब ऐसा नहीं है कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि मतलब एक स्टेडी ड्रीम है। हाँ, और ड्रीम तुम्हारा इवॉल्व होगा, तो विच इज अ गुड थिंग। परफेक्ट। तो ड्रीम्स डू कम ट्रू, दैट्स द कंक्लूजन, 100%। प्लीज ड्रीम। वेरी गुड, प्लीज ड्रीम। यस 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 ब्रो, भाई ने बोल दिया प्लीज ड्रीम्स डू कम ट्रू। आप बताओ। आगे बढ़ता रहेगा ड्रीम, आगे और मजा आता रहेगा। भी रहो, ड्रीम भी करते रहो, मजा आएगा। That's good. So dreams do come true. So guys, we have one new person with us. आप एक बार बताओ, अपना इंट्रो दो पहले तो, अपना नाम बता दो। Hi, my name is Kranti Joshi. Okay, क्रांति जोशी। आप जब क्लास 10th में थे तब आपका क्या ड्रीम था? यार काफी, I think a lot of girls had this as a dream, which I had. I wanted to become an actress. Okay, okay. तो मुझे तो लगता था मेरे खून में नौटंकी दौड़ती है, so I'm like, this is what I want to do. Okay. And just like how it is, right? Number one, so the funny part is कि family resistance होता है. But in my family, my mother was pretty supportive, and she always used to tell me one thing: the person who can lie so well can act.
You're going to make an absolutely brilliant actress. But so in fact मैंने initiate भी करा था. I did theaters. I did all these auditions and stuff. And then people used to say that it's not very easy. It's not very easy. And I actually now believe people that yes, it is not that easy. So yes, मुझे actress बनना था और वो काफी अभी मैं actress ही हूँ. I'm a counselor. Nice. I'm in a way an actress. I mean, I can let people, fool people kind of. अच्छा, okay. Kind of. Or either fooling is the wrong word. I think I can over exaggerate. Nice. अच्छा एक बात बताओ, जो क्लास 10th में तुम सोच रहे थे, तो आर यू समवेयर लाइक मतलब जो सोच रहे थे इतना मुश्किल नहीं था, लाइक यू वर थिंकिंग लाइफ वुड बी दिस डिफिकल्ट आफ्टर 10th, तो वाज इट दैट डिफिकल्ट? Apart from everything, so I'd like to say that yes, I did flunk one of my board examinations. Oh my God, yes. Guys, truth's coming out. I did flunk one of the board examinations, which eventually got on track. Yes, but जब वो हुआ था, I think that was the breaking. That was the. So how did you come over it? To be honest, I think now that I look back, that time मैंने बहुत fight मारा था, बहुत struggle किया था, and I had all the self doubts in the world because I belong from a family that is pretty educated. And being a girl child, if I fail, that is like even more worse क्योंकि वो ऐसा है कि अब तो होगा ही नहीं कुछ आगे. I went into that phase and depression and stuff. But now that I look back and I think about it, I am an education counselor. Guys, she teaches IELTS के exam की IELTS के लिए. She is an educator. She teaches people. So can you see how life changes? Like at a point you would be feeling कि यार अब कुछ हो नहीं सकता, but now you are looking back and saying कि यार वो उतना मैटर नहीं करना चाहिए था. That is what we do. Students आज भी सोचते हैं कि सर मेरा पेपर खराब हो गया. I feel so bad. Will I be able to come over it? Guys, it happens. You do really good. See, she's a happy counselor, and I believe her students will be so happy. So Joshi ji, what do you say? कि like do dreams come true in the end? Final verdict. I don't know if people have watched this series called Koda Factory. Yeah. It's wrong to call it a dream. Like he says कि goal बोलो. Say it's a goal because dreams may or may not come true. But I think if you aim at something, it's just a process. Reach there. तो जो आपने बचपन में सोचा था वो लगता है कि मतलब the younger you will be proud of yourself as of now. Like everything कि हाँ यार तूने सही करा है, तो कुछ तो है, मतलब जितना सोचा था उतना बुरा नहीं हुआ. Absolutely yes. Oh my God, that is what. 100% yes. And I like to tell everyone just one simple thing, that it's very very okay to feel how you're feeling at the age that you guys are, all right? And by the time you reach my age or our age, you realize that this is all very trivial and very childish. And सबके साथ होता है, सबको सेम फीलिंग होती है ब्रो. सारे जितने भी हमारे फ्रेंड हैं सबको सेम फीलिंग थी. सब लकी होता है, सबके साथ होता है. We have got this just to make it. Oh my God. अच्छा, this is Foxy. Yeah, she has come back. She is happy. फॉक्सी, तुम्हारा क्या ड्रीम था? फॉक्सी क्या ड्रीम कर रही थी तुम? नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का. मैं नहीं बताऊंगा. Infinite belly rubs. फॉक्सी, तुमने क्या ड्रीम करा था? तुम्हारे ड्रीम ट्रू होते हैं. And this is see again Foxy trying to get all the attention. Foxy. Oh my God, try kara di. Foxy, that jump. No. Oh my God, this is an active dog. Hyperactive. Mama. भैया अलग ही Foxy चल रही है.